एप्लीकेशन करांगे। 2 एप्लीकेशन अपनी हो चुकी हैं गॉस थ्योरम दियां। थर्ड एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आगी फॉर द पीपल्स इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। हुण आपां ने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ओके, तो ਇਹਦਾ रेडियस की होगा सेंटर का ओ ले लो, रेडियस ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ स्मॉल r, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ उस टाइम ਆਪਾਂ 3 केसेस करते हैं। 3 केसेस किने करते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ਨੂੰ फाइंड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। सब तो पहला आउटसाइड द शेल, मतलब आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल एंड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तीनों को फाइंड करांगे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड, ऑन द एंड इनसाइड द। चलो पहला आउटसाइड दी फाइंड करते हैं। आउटसाइड ते मान लो एक पॉइंट ला लिया P जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हुण चार्ज नू एनक्लोज करना अपन नू पता है थ्रू गॉसियन सरफेस ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਨਕਲੋਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਫਰਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਸਟ? ਸਫੈਰਿਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ r, ਵੱਡੀ r। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ तो फर्स्ट केस दे विच सब तो पहले तुसी की लिखोगे कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस स्मॉल r विद सेंटर o लेट अ चार्ज q, ਆਪਾਂ q ले लेंगे। चार्ज q is distributed uniformly over the surface of the shell। तो चलो पहला केस करते हैं। पहला केस की हैगा इलैक्ट्रिक फील्ड intensity outside the shell, outside the shell की कितना let a sphere of Gaussian surface लिया ना अपन, sphere of radius r, p point तो radius की लिया capital R and center O is the outside the spherical shell, outside the spherical shell of the Gaussian surface। P point कितने लिया अपन ने Gaussian surface दे ऊपर having small area। हुण अपन पता P point दे find करन दे लई ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ small area element ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। small area element ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ds। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ, one is electric field and another one is unit vector। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ unit vector ਹੁੰਦਾ it is a perpendicular to the surface। perpendicular to the surface मतलब कि इस तरह है ना, and uniformly positively charged है, then electric field की direction भी किस तरह होगी radially outward। समझ आ गई मेरी गल? क्लियर होगी दोनों चीज़ां की है। सब तो पहली गल ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बनाया, ਉਹਦੇ आउटसाइड ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ q, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ स्मॉल r ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇसेस फाइंड करने। सब तो पहला आउटसाइड द शेल ले लिया ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ p पॉइंट गॉसियन सरफेस ਦੇ थ्रू चार्ज एनक्लोज करता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया ds and as we know that unit vector is perpendicular to the surface and electric field is radially outward due to the uniformly positively charged ring। okay, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ फाइंड करना है net electric flux, जिवें ਆਪਾਂ फाइंड करते आ रहे हैं net electric flux। फाइंड करो net electric flux। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ देखो r is greater than small r is greater than r। ਆ ਲਿਖ ਲਿਓ outside ਦੇ ਵਿੱਚ small r is कैपिटल R तो की हैगी ओ सॉरी R is greater than R। ओके जी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब phi is equal to
EDS। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ फाई फाइंड करांगे गॉसियन सरफेस ਦੇ ਥਰੂ EDS ਡਾਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ cos ਥੀਟਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ cos ਥੀਟਾ cos 0 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ because electric field and unit vector are along the same direction ਜਦੋਂ same direction ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ then theta is equal to 0 ਜਦੋਂ theta is equal to 0 ਹੋ ਗਿਆ then cos 0 is equal to 1 मतलब ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ EDS cos 0 ਜਾਂ ਫਿਰ EDS ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ DS। और स्फेरिकल ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ 4 ਪਾਈ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ r² ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ a ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ phi is equal to ADS is equal to E 4 pi r²। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ as we know that E dot ds is equal to ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ q upon epsilon naught। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨੋ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨੋ then ਆਪਣੇ ਕੋਲ E dot s ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜੋ cos 0 is equal to ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 मतलब अपने को सिंपल आएगा EDS is equal to from 1 and 2 E 4 pi r² is equal to q by epsilon naught ਜਾਂ फिर E is equal to electric field intensity की इक्वल आ गई q by 4 pi r² epsilon naught ਜਾਂ फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 pi r² ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ A मतलब q by a epsilon naught। as we know that q by a ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ q by a is equal to surface charge distribution। so ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਸਿਗਮਾ on epsilon naught ठीक है। then electric field intensity outside the shell अपने को लगी E is equal to sigma upon epsilon naught। ये समझ आ गई। next on the surface ਜਦੋਂ on the surface लिया then on the surface load or on the surface of shell ਜਦੋਂ on the surface of shell लिया then p point ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ then ਇਹਦਾ radius ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ r ਹੁਣ r is equal to r ਆ ਗਿਆ है ना। बस अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਲਓਗੇ phi E dot ds ਡਾਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ n ਕੈਪ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਊਟਵਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਆਣਾ ਹੈ ਦੈਨ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 0 ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਰ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ cos 0 ਆ ਗਿਆ cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲੋ cos 0 कितना हो गया 1 मतलब phi की वैल्यू आ गई E D S। तो देखो फिर तो अपने को आ गया उमें D S नो फिर की पुट कर सकते हैं R इज इक्वल टू R ही है ना हम आप स्मॉल r ले लेना क्योंकि दोनों r इक्वल ही ने है ना इनो इक्वल टू फिर तो a रख सकते हो तुसी तो phi इज इक्वल टू E 4 pi r स्क्वायर इनो फिर तो 1 मान लो ਜਾਂ थर्ड इक्वेशन मान लो पहला 1 ਤੇ 2 मान चुके फिर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम
गॉस थ्योरम की कहती है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। फिर तो अपने को डॉट कट के क्या है cos 0 इज इक्वल टू 1। तो फ्रॉम 3 and 4 we get e 4 pi r square is equal to q by epsilon naught। e is equal to q by 4 pi r square epsilon naught 4 pi r square। फिर तो तुसी की लिख सकते हो a तो q by a epsilon naught q by a नु फिर तो तुसी की लिख सकते हो सिग्मा मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो e is equal to फिर तो अपने को किया गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके ये भी अपने को केस आ गया। हम थर्ड लास्ट केस रह गया इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल जो इनसाइड द शेल होवे दैन अपने को सेंटर ओ सी रेडियस इहदा आर आया सी। दैन हुण अपने को इनसाइड आप ले लेने पी पॉइंट कोई भी पी पॉइंट ले लो इहदा रेडियस आप ले लेने आर है ना। एक गॉसियन सरफेस ले लेने हम लेने हुणे आप हुण इनसाइड ले लो है ना। जो इनसाइड लिया तो इहदा भी एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लो ds है ना। तो ओमी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस n कैप n परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। सब कुछ ओमी आ गया। ये वैसे अंदर बनाना है दोनों चीज़ां कट चुकी अब पी पॉइंट आ गया अपने को n कैप एंड ई वेक्टर। ठीक है जी दोनों आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ देखो चार्ज तो अपने को बाहर डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज तो अंदर है ही नहीं। जो चार्ज अंदर है नहीं तो क्यों की वैल्यू की होगी इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल क्यों की वैल्यू की आ गई 0। जो क्यों की वैल्यू 0 आ गई दैन तुसी सैकेंड केस दे विचों चक सकते हो कोई भी वैल्यू जिवें आपां कीती सी ना e 4 pi r square इज इक्वल टू किहदे आया सीगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आया सी आई सी ना अपने को जो दोनों ने एग्रीगेट किया सी। जो क्यू की वैल्यू 0 आ गई तो 0 बाय समथिंग सारा कुछ 0 मतलब e की वैल्यू अपने को आ गया 0। तो ये तो अपन ये प्रूव होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल है दैन चार्ज तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट है ही नहीं। जो चार्ज नहीं अंदर डिस्ट्रीब्यूट दैन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी की आ गई 0। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 एक गल होर भी पता लगी भी जी स्मॉल आ कैपिटल आर है ये लैस अपने को की आ गई लैस दैन आर आ गई। ओके जी समझ आ गई ना अपने को की आया तो अपने को आ वाली आर बड़ी आई ना ये तो आ चीज़ आ गई हम अपने को पता लग गया। तो इन्हों एक चीज़ होर भी कह सकते हैं इन्हों पर कह सकते हैं we can say that electric field due to the uniformly charged spherical shell is 0 at all point inside the shell is 0 at all point inside the shell। इन्हों पर एक चीज़ और भी बोल सकते हैं it is also known as electrostatic shielding or Faraday cage। it is also known as electrostatic shielding और Faraday cage। ओके जी समझ आ गई गल दी। हुण इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में तुहानूं दस दिने की है। शील्डिंग का मतलब होंदा प्रोटैक्ट करना जिहड़ी अंदर चीज़ पई हुई है उहनूं बाहर की करदी सारी प्रोटैक्शन मिल रही है ना उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ठीक है इसकी डेफिनेशन भी तुम लिख सकते हो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। आइसोलेटिंग मतलब डिफरेंट सैपरेट करना रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड। शील्डिंग का मतलब होंदा जिवें आपां घर च रह रहे हैं है ना घर का मतलब प्रोटैक्शन मिल रही है ना आपको बाहर वाली चीज़ों तो दैट्स मीन दिस इज नोन एज शील्डिंग। ओके जी नेक्स्ट हुण इहदी थोड़ी जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो
ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਥਰੂ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ। ठीक है, डिस्टेंस अपने को की आ गया, अपने को आर ले लो, सिंपल आर डिस्टेंस तो अपने फाइंड की है। ठीक है, चलो आप ये तीन केस लेने। सब तो पहला अपने को एक आउटसाइड ते सीगा, फिर इनसाइड ते सीगा, फिर अपने को सच ऑन दी सरफेस सीगा, फिर अपने को की सीगा इनसाइड। देखो इनसाइड ते अपनी वैल्यू की आ गई 0 ही आ गई, इनसाइड ते वैल्यू की आ गई अपने को 0, मतलब आर लेस देन आर सी। ਤੇ फिर अपने को आया आर इक्वल टू आर। सब तो पहले केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ अपने को आर इज ग्रेटर देन आर, અહીં ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ अपने को आर लेस देन आर ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ अपने को e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 0 ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ r ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਦੈਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਊਗੀ। e ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਉਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਈ, ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ, p ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿਆ, इलैक्ट्रिक फील्ड भी उत्थे वध होगा। जो इलैक्ट्रिक फील्ड वध होगा तो आर इज इक्वल टू आर तो इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब तो मैक्सिमम। अगे आ गया आउटसाइड का केस। आउटसाइड का केस की आया अपने को, आउटसाइड ते की आया अपने को हैगी तो वैल्यू तुसी कहोगे सेम ही आई सी, बट पी पॉइंट एन आ गया। ज्यों ज्यों ही दूर होंदा जाऊगा पी पॉइंट, चार्ज की पावर घटती जानी है, चार्ज की पावर घटती जाऊगी, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू की होंगी जाऊगी मिनिमम होंगी। समझ आ गई गल दी। आउटसाइड ते अपने पी पॉइंट जिवें तुसीं कहोगे भी सेम ही वैल्यू आई सी, बट पावर तो ਉਹਦੀ घटती जा रही है ना चार्ज की, जो पावर घटती जा रही हैगी दैन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू भी की होगी मिनिमम आऊगी। ओके जी, समझ आ गई गल दी। ये अपने कोल केस हैगा, अपने कोल की आ गया, अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शैल। मैंने उम्मीद है भी तुहानूं ये वाला टॉपिक समझ आ गया होना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इहनूं ध्यान नाल करियो। ओके दैट्स ऑल।